Hello, very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Manish Gupta, Assistant Professor of Physics from Sri Vaishnav College, Aligarh. So today I discuss the topic communication. So what is the meaning of communication? Communication is a common term. The communication means simply we can say the communication is the transformation of information from one place to another. In a simple way, we can say suppose किसी भी रूम में 3 से 4 पर्सन अलग अलग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और यदि वो आपस में यदि म्यूचुअल कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तो म्यूचुअल कन्वर्सेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. Or the other example is this: suppose a teacher deliver a lecture in a classroom. So 30, 40 or 50 students are present in a classroom. So the delivery of the lecture for a student is also a part of the communication. So this is a process of direct communication. So there is no medium is required. The only air medium, atmosphere is responsible to communicate the signal from information source to destination. तो information source यहाँ पर क्या हुआ? तो information source is a teacher और destination यहाँ पर क्या हुए? Students. तो ये तो हमारा हो जाता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट. यदि इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, सपोज इन ए ऑडिटोरियम या इन ए लेक्चर रूम वन सेमिनार और वन सिम्पोजियम इज रनिंग. The one resource person is deliver a lecture and the number of pupils, the number of teachers are, the number of students are present in the auditorium. Suppose just like 250 or 300 pupils, teachers are present there. So direct communication is not possible. The direct communication is not possible. So then in this condition we use an electronic devices. So electronic devices like mic. तो माइक का मतलब क्या हुआ? तो माइक जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स हैं तो ये इनडायरेक्टली मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं. तो जो हम बोलते हैं ये सब मैकेनिकल वेव्स हैं. तो मैकेनिकल वेव्स को हम माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको भेजते हैं एम्पलीफायर में. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द एम्पलीफायर थ्रू माइक. What is the amplifier? Amplifier is an electronic device जो कि इंसिडेंट सिग्नल्स के गेन को एम्पलीफाई करने का काम करता है. तो गेन मीन्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, उसका करंट एम्पलीट्यूड भी हो सकता है. तो उसके गेन को इंक्रीज करने का काम करेगा. तो एम्पलीफाइड सिग्नल्स आर अगेन सेंड टू द स्पीकर और लाउड स्पीकर. तो लाउड स्पीकर इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स into the mechanical waves. So this is the experimental phenomena या practical approach. So when a lecture is delivered in an auditorium, so in this condition direct communication is not possible. So for which we use mic, amplifier and speaker or loudspeaker. So on the behalf of these instruments, so what is the definition of the communication? So on the behalf of these conditions, so we can say the term communication refers to the sending, receiving and processing of information by electronic means. Is it clear? The term communication refers to the sending, receiving and processing of information by the electronic means. तो ये जो है किसी भी ऑडिटोरियम या सेमिनार हॉल में यदि हमने अपनी बात को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम माइक, एम्पलीफायर और स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये और भी है. तो माइक एंड स्पीकर बोथ आर द ट्रांसड्यूसर. तो ये दोनों ही ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर इज ए 4 पोर्ट डिवाइस. तो 4 पोर्ट डिवाइस का मतलब ये है यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ट्रांसड्यूसर इज ए 4 पोर्ट डिवाइस. 4 पोर्ट डिवाइस का मतलब the transducer is also a device which convert mechanical wave into electrical signals and electrical signals into mechanical waves both.
तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल माइक एंड स्पीकर बोथ आर द ट्रांसड्यूसर. तो व्हाट इज द रोल ऑफ माइक? तो माइक का रोल क्या है? तो माइक का रोल ये है कि माइक इज ऑल्सो ट्रांसड्यूसर तो विच कन्वर्ट द मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स का मतलब जो हम बोलते हैं, तो मैकेनिकल वेव्स is convert into the electrical signal with the help of transducer. So here what is the name of the transducer? So here name of the transducer is a mic या microphone. इसके बाद when electrical signals are sent to the speaker या loudspeaker. Loudspeaker is also a transducer. The loudspeaker is also a transducer to which convert the electrical signals into the mechanical waves. Speaker is also convert the electrical signals into the mechanical waves, which is also a transducer. So this is the communication process for a local area. लोकल एरिया से मीन्स एक कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन हॉल या थिएटर हमें दे रखा है, तो उस थिएटर में यदि हमें कम्युनिकेट करना है तो इस प्रोसेस को हम सिंपली फॉलो कर सकते हैं. तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 स्पीकर का यूज़ करके हम उसको डिफाइन कर देंगे. बट अब यहाँ पर कंडीशन या क्वेश्चन ये राइज होता है कि इफ़ information signal is present here and the destination is placed far off condition means 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो here this condition is not applicable. जब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी तो फिर ये अब हमारा यहाँ पर मॉडर्न कम्युनिकेशन की कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे. तो व्हाट इज द मॉडर्न कम्युनिकेशन? तो मॉडर्न कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं, तो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इज फर्स्ट कंसर्न विद सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर इट्स ट्रांसमिशन. तो व्हाट इज द मीनिंग? A modern communication system is first concerned with sorting. तो sorting का मतलब क्या है? क्योंकि अब जब फार ऑफ प्लेस पर आपको सिग्नल्स को सेंड करना है तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि जितना डाटा हमारे पास मौजूद है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हम उसको एज इट इज़ भेज देंगे. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें फाइल का साइज़ भी डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फाइल. तो ये पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि इतने साइज़ की हमें फाइल को भेजनी है कि 1 MB की या 100 MB की. तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है हमें उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें से हमें ये छांटना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हमारा इसमें से यूजलेस है, जिसको कि हम यदि ना भी भेजें तो हमारा काम चल सकता है. तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग. व्हाट इज द प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट है तो उसको हम पहले कोडिंग करते हैं. उसकी कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स. तो ऑल स्टूडेंट्स आर वेल नोन, बाइनरी नंबर्स आर 0 and 1. तो इनिशियली तो सिग्नल्स आर कन्वर्टिंग विद द हेल्प ऑफ कोडिंग प्रोसेस, जिसको हम एनकोडिंग भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. इससे क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन का साइज तो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हम कम साइज की फाइल में ट्रांसफर करा सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, द सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग. हम इसमें जो भी प्रोसेसिंग हमने की, यानी कि जो भी एनकोडिंग की, हम इसको स्टोर भी करके रखते हैं अपने डिवाइस में, जिससे कि फर्दर यदि आगे हमें कभी ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको आगे की तरफ सेंड कर सकें. तो यदि उसमें कोई भी नया इम्प्लीमेंट करना है तो हम उसको वापस उसको मॉडिफाई करके फिर से हम सेंड कर देंगे. तो ये हमारा कहलाता है स्टोरिंग. तो मॉडर्न कम्युनिकेशन में सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर इट्स ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन से पहले आपको इस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा. तो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन में आ गया. तो इनडायरेक्टली वी कैन से दिस इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी. वायरलेस टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकली. वायरलेस से पहले वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी. वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि लैंडलाइन फ़ोन्स हम यूज़ करते रहे हैं. तो लैंडलाइन फ़ोन आर ऑल्सो कॉल्ड वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लोकल एरियाज या इन ए पर्टिकुलर सिटी. लेकिन हम इसकी हेल्प से लार्ज या फार ऑफ प्लेसेस पर वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ही कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्सप्लेन की जाती है. अब व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स द कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट
कन्वे अ मैसेज। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम मैसेज को इंफॉर्मेशन सिग्नल से डेस्टिनेशन के लिए कन्वे करा सकें। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से, तो फर्स्ट डिवाइस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इंफॉर्मेशन सोर्स तो वही हो गया कि जो हम इस समय बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसको पहले हमने डाटा को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद फिर हम इसकी क्या करेंगे, एनकोडिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, मीन्स 0 and 1। तो इंफॉर्मेशन सोर्स, एनकोडिंग के साथ ही एक प्रोसेसर स्टार्ट होता है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर इज ऑल्सो ए डिवाइस विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा चैनल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? आई थिंक चैनल हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो टेलीविजन में भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ चैनल्स आर यूज। तो उसमें हम नंबरिंग कर देते हैं कि फर्स्ट चैनल सपोज मान लीजिए एबीपी न्यूज़ का है, या सेकंड चैनल हमारा इंडिया टीवी का है, थर्ड स्टार प्लस का है। तो अपनी फैसिलिटी के लिए हमने उसको चैनलाइज कर दिया, जिससे कि बार बार हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम उस नंबर्स को याद रख लेते हैं, जिससे कि हमें यदि पर्टिकुलर चैनल को सीन करना है तो हम उस रिमोट के उस बटन को क्लिक करते हैं तो वो चैनल हमारी टीवी स्क्रीन पर आ जाता है। वही प्रोसेस जो है यहाँ पर यूज होगा, चैनलाइजेशन। सपोज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अलग अलग जगह से यदि नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस एक साथ आ रही हैं तो हमें उनको पहले ऐसा नहीं कि एक साथ उनको कलेक्ट कर लेंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें करना पड़ेगा चैनलाइज। तो चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि सभी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने अलग अलग चैनल डिसाइड कर लिया। तो उस प्रोसेस को कहते हैं चैनल। चैनल के साथ ही हम डिफाइन करते हैं नॉइज सोर्स। नॉइज सोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉइज सोर्स में ये है कि जब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर इंसिडेंट हम कराते हैं तो उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ हमिंग या डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाए। तो हमिंग या डिस्टॉर्शन क्रिएट होने की वजह से फिर आगे का प्रोसेस जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अक्सर जब हम मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमने ये फील भी करते हैं, तो कभी किसी सेकंड पर्सन पे या डेस्टिनेशन पे हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही होती तो हम हलो हलो करते रहते हैं काफ़ी देर तक, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है। तो ये सब हमिंग और डिस्टॉर्शन कहलाता है। इस हमिंग और डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉइज सोर्स का। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉइज सोर्स को रिड्यूस कर सकें, बट इन प्रैक्टिस ऐसा हो नहीं पाता। तो हम ये कह नहीं सकते कि 100% हम रिडक्शन कर सकते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ हमिंग या डिस्टॉर्शन रह जाता है। और वो डिपेंड करता है वेदर टू वेदर, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स है हमारे, तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स जो है, यदि वेदर हमारा हॉट है, इट मीन्स गर्मी के दिनों में इनका कम्युनिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फास्ट होता है। और यदि मीडियम में थोड़ी सी मॉइस्ट हो गया, यदि मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर में ये सिग्नल्स जो है प्रॉपरली प्रोपेगेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे वो सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बिहेवियर है वो रेयरर मीडियम में बेस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ डेंस मीडियम। तो रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि यदि वेदर की जो एयर है वो यदि कंपेरेटिवली हॉट है तो वो हमारा कहलाएगा रेयरर। और यदि इसी के रेस्पेक्ट में हम देखें डेंस मीडियम, तो डेंस मीडियम में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जब फॉगी सीज़न होता है तो फॉगी सीज़न में अक्सर हम देखते हैं, या हैवी रेन यदि हो रही हो, तो हमारे सेटअप बॉक्स जितने भी हम घरों में यूज़ कर रहे हैं टेलीविज़न के साथ, तो वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते। तो रिसेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, शॉर्ट आउट करने के लिए अब एक नया टेक्नोलॉजी और जनरेट हुई है, जिसको अभी रिसेंटली आप सब समझ भी रहे होंगे कि जियो फाइबर इस समय इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो जियो फाइबर जो है इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का एक मेथड है। तो उसमें हम केबल के थ्रू सिग्नल्स को लेकर आ रहे हैं अपने घर तक, यानी कि डेस्टिनेशन तक, जिससे कि वेदर का इम्पैक्ट हमारे सिग्नल्स के ऊपर ना आए, जो कि अक्सर इस समय हम देखने को हमें मिलता है। तो ये तो हमारा हो जाएगा चैनल और नॉइज सोर्स का। फाइनली रिसीवर रिसीविंग स्टेशन हो गया इनडायरेक्टली। तो रिसीविंग स्टेशन का मतलब क्या है कि जो भी सिग्नल्स हमें मिले उसको रिसीविंग स्टेशन पे रिसीव किया गया थ्रू रिसीवर, और रिसीव करने के साथ साथ ही हम उसको करते हैं डिकोड, यानी कि हमने यहाँ पर की थी एनकोडिंग की थी 0 1, यानी कि बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में।
वापस हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद फिर थ्रू रिसीवर उसको डेस्टिनेशन पर सेंड कर दिया जाता है। तो डेस्टिनेशन का मतलब यदि इफ एनी टू पर्सन आर कम्युनिकेट विद इट्स ओन मोबाइल, तो जो भी मैं यहाँ से बातचीत करूँगा तो ये तो यदि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, और यदि सेकंड पर्सन यदि मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है तो वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो ये इतने प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स आर नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स आर नॉट पॉसिबल। तो ऑडियो सिग्नल्स का मतलब क्या हो गया? तो ऑडियो सिग्नल्स का मतलब यह है कि जो साउंड हम जनरेट कर रहे हैं तो ये हमारी ऑडियो वेव्स कहलाती हैं। अब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो वेव या साउंड वेव, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वेव? द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज अकॉर्डिंग टू द लैप्लास करेक्शन, ये होगी हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। The speed of the sound wave is 332 meter per second, and the frequency of the audible waves या sound waves is lie in between 20 hertz to 20 kilohertz. Frequency of the audio signals is lie in between 20 hertz to 20 kilohertz, and speed of the sound wave is 332 meter per second. तो ये हमारी ऑडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी और स्पीड है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो यही होगा, व्हाई वी कैन नॉट ट्रांसफर इन ऑडियो सिग्नल डायरेक्टली, यानी कि हम उनको डायरेक्टली ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।